पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ that is which are the following crop is shown in the official seal of Punjab ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ official seal ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਟ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਊ ਮਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਗਿਆ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਿਆ और 6 नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸੀਵਸ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ western rainfall in the months of December to March ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਸਟਰਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਰੂਰਲ 올림픽 ਗੇਮਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ 올림픽ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੂਰਲ 올림픽ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ Which section of Punjab Cooperative Societies Act 1961 has been repealed which provided for auction of land? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 67A ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਟ ਇਜ਼ 15 ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ 59th ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਐਂਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਖਸਤਾਲ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਪਕੀ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਗਚੇਨ ਜ਼ਾਂਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਗਚੇਨ ਜ਼ਾਂਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਂਗਪੇਨ ਜ਼ਾਂਗਬੋ। ਇਹਦਾ ਲਾਂਗਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀੜੀਜ਼ ਆਰ ਸਮਾਲ ਸਟੂਲਸ। ਪੀੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਕ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੈਂਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 1 2 4 3 1 2 4 3। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੇਮ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। Which scheme has been introduced in the budget 2022? 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ। What was the name of princely state of Punjab which did not join India in 1947? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਜੂਨਾਗढ़ और एक बहावलपुर, बहावलपुर पंजाब दी सीगी, ठीक है जी। वैसे हैदराबाद आल्सो, हैदराबाद ने भी इंडिया ज्वाइन नहीं सी कीता, इन्हें अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दित्ती सी और 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ हैदराबाद वाज टेकन ओवर बाय इंडिया आफ्टर पुलिस एक्शन। Which city has a great strategic significance for being India's only land link to Kashmir? ठीक है जी, ओनली ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, लैंड लिंक ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ वैसे ਤਾਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, that is through ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਵਾਰਡ, ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। Who is the author of the book My Other Two Daughters? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। The following is the list of rulers of Patiala: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1875 ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹ 1876 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1939 ਤੱਕ ਰਹੇ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ ਔਰ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਸੀਡ ਫਰਮ ਕਾਟਨ ਬਾਲਸ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਟਨ ਬਾਲਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਰਮਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਧਾਗਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਿਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਛੰਦ, ਇਹ ਛੰਦ ਕਦੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੰਦ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਮੱਖੀ, ਭੈਣ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਠੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂ ਸਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਬਾय ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਡੇਟਡ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਰਡਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਾय ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਨਰੀ ਇਲੀਅਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੰਗਨ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਤਵੀਤ, ornaments are used which is a wrist ornament, ठीक है जी। सो जो wrist ornament है, wrist मतलब कि अपनी ਇਹ ਕਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਗਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਗਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੰਗਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਵੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕੰਗਨ ਹੋਏਗਾ। Who has been appointed the first turbaned Sikh? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਬਨਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। अपने जीके का जो मॉक टेस्ट है उसके नेक्स्ट सेट के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, बिगिन करते हैं इसको कि आज के क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज नेम्ड एज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द यूएस बेस्ड एनिमल वेलफेयर एनजीओ पैटा, ठीक है, पीटीए, आपके पास जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए है, ठीक है। आलिया भट्ट को इसमें इस बार एम्बेसडर चुना गया था इसके लिए कि इन्होंने बहुत काम किया है लोगों के साथ जुड़कर एनिमल वेलफेयर के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास, इस बार आलिया भट्ट को 2-3 ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेशनली भी उन्होंने 2 अवार्ड ऐसे जीते हैं जो आपके इंपॉर्टेंस में है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन रहे हैं पिछले 1 साल के, 2022 की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। कुछ 21 की कैटेगरी के हैं, कुछ 22 की कैटेगरी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अतुल कुमार गोयल, जिनको अभी रिसेंटली एमडी और सीईओ चुना गया है, वो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक में चुना गया है आपके पास? दैट इज ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेक्शन से क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन ऑफ द मिशन ऑफ द प्रोवाइडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज, ठीक है। अर्बन मिशन जो आपके पास चल रहा है उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात चल रही है, ठीक है। तो तेलंगाना इसमें नंबर 1 पे रहा है ओवरऑल पूरे भारत के अंदर। अगर आप सारी स्टेट्स को देखोगे तो बहुत क्लोज हैं, ये सारी के सारी टॉप 5 की स्टेट्स हैं। आईबीपीएस में पीओ के एग्जाम्स में कई बार ये 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 तक पूछ लेते हैं। एज अ स्टेट एग्जाम ठीक है, यहां तक रहेगा, लेकिन अगर आप बैंक पीओ की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज टॉप 5 को याद रखिए, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज नाउ बीन एडमिटेड एज द 4th मेंबर आउटसाइड द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक?
देखो अब ब्रिक्स के हम मेंबर्स हमारे पास कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। न्यू एंट्री किसकी की गई है? इजिप्ट की गई है। बहुत लंबे समय से इन्होंने अर्जी डाली हुई थी, ठीक है। और अर्जेंटीना और ईरान ने आपकी एप्लीकेशंस दी हुई कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। तो आपको यह भी याद रखना है, करंट अफेयर का ही पार्ट है, कि कौन सी कंट्रीज ने एप्लीकेशंस दी हुई है कि वी शुड बी मेड द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स नाउ, ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज सेट अप a quantum computing laboratory and the center of artificial intelligence at the military college of telecommunication engineering in, ये माओ जगह है आपके पास मध्य प्रदेश में। आपकी बहुत जबरदस्त कमांड है आर्मी की ये, ठीक है। भारत कुछ मात्र देशों में से एक बना जिसके पास क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी बनने जा रही है। इंडियन आर्मी के पास बहुत कम मिलिट्री फोर्सेज हैं दुनिया के अंदर जिनके पास क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरीज है। तो इंडिया इज बिन अमर्जिंग एज अ न्यू सुपर पावर इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द नेशनल चैंपियन फॉर द 10th टाइम इन द सिंगल्स कैटेगरी ऑफ पैरा बैडमिंटन, ठीक है। संजीव कुमार जी हैं आपके, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, काफी न्यूज में रहे थे ये, ठीक है। इनको 10th टाइम ये सिंगल्स कैटेगरी पैरा बैडमिंटन के चैंपियन बने हैं भारत के तौर पर, नेशनल चैंपियन है। Next question, which government aided the technical institution back the top position for the 3rd successive year in the central Atal ranking of institution on innovation achievements, that is ARIA कहा जाता है, इसे ARIIA फुल फॉर्म भी याद रखा करो क्लास, एब्रीविएशंस में काम आती हैं। 29 दिसंबर 2021 को IIT मद्रास लगातार 3 साल से इस अटल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और बहुत जगह पर आप देखोगे कि डिफेंस के कोई प्रोग्राम्स हो, कुछ इनोवेशन प्रोग्राम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी के टर्म में हो, इवन मेडिकल साइंस की लाइंस के अंदर भी जो इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है उसमें भी इनका बड़ा जबरदस्त योगदान चल रहा है। तो IIT मद्रास इज डूइंग वंडर्स फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो फर्स्ट अमेंडमेंट से आपके पास ये ऐड किया गया था। लैंड एंड जो आपके टेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लाइसेंस वगैरह, उनके उनसे रिलेटेड जो आपके टेन्योर्स हैं, मतलब आपके जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था, लैंड रेगुलेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 9th शेड्यूल, ठीक है, ठीक है। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की 1951, ईयर याद रखना है आपको, 1951 है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल्स अंडर, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी कैटेगरीज के थ्रू अपने जजमेंट्स देती है ना, केस को स्टडी करती है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपके पास किसके बारे में बात करती है? अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट और स्टेट के बीच में। बाकियों को भी देखते हैं। आपकी जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है इसके अंदर आपके पास फर्दर 3 तरीके की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर आपके पास एक हेडिंग आते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई करती है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जिसमें वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है किसी मैटर में, चाहे उसको अपनी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करनी हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के केस में बात करनी हो, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है आपकी, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो करती है। तो ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, ये आपको पढ़नी है, आपको पता होनी चाहिए, विद आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहां पर आपके पास क्या है? जुडिशियल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन और अ बॉडी टू डू दैट विच इज हिज और इट्स ड्यूटी टू डू कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट? जो 5 रिट्स आपको आर्टिकल 32 से मेंशन की गई है उसमें वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को कमांड कब करेगी कि अपना काम, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो? तो मैंडामस इज राइट आंसर। मैंडामस का मतलब ही होता है टू कमांड। इनकी मीनिंग याद रखो क्लास, मैंडामस का मतलब ही होता है टू कमांड। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है। प्रोबिएशन का तो मतलब होता है स्टॉपिंग समवन। सर्चरी का मतलब होता है टू क्वैश द ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। एक रह गई है आपके पास क्यू वरंटो। क्यू वरंटो का मीनिंग आपके पास क्या होता है? बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी। क्यू वरंटो का क्या मीनिंग है? बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डू रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे, वो आपके पास कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 143 के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। विच पीरियड इन द पार्लियामेंट बिगिंस एट द नून एंड स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर? तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 आवर, ठीक है। और मिसलेनियस वर्क काफी सारा होता है यहां पे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज क्वारम इन द इंडियन पार्लियामेंट? ठीक है, क्वारम का मतलब होता है 1/10
ठीक है। अब 1/10 किसका होगा? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस। अगर आप लोकसभा में बैठे हो तो 550 का 10% निकाल लो, 55 आ जाएगा। ठीक है, लोकसभा का निकाल लो 250 का 10%, तो कितना आ जाएगा? 25। तो जब तक लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 50 लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 मेंबर्स नहीं होते, तब तक आप कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते हो लोकसभा और राज्यसभा की। इसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं हम? क्वारम इज द वर्ड। ठीक है, चल। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? ठीक है, 3 किताबें लिखी गई थी। जब मोहम्मद महमूद गजनवी भारत आते हैं तो फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ठीक है, अलबरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद। ठीक है, उत्तबी ने लिखा था किताब यामिनी। ठीक है, सारी बुक्स पढ़ लीजिए, क्लास पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है, फिरदौसी ने क्या लिखा था? आपका शाहनामा। ठीक है, चलिए, इसमें से अलबरूनी का नाम याद रखिएगा। इज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुराण पढ़े थे इन्होंने। Which extremist leader of the freedom movement was given 6-year jail punishment in 1908? तो 1908 के अंदर जो 6 साल के लिए जेल गए थे, बोला हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। जेल ये सभी व्यक्ति गए हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको 1908 का केस पूछा है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड इन कश्मीर। एक्चुअल जगह का नाम कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कुंदलवन है। ठीक है, 72 AD में हुई थी ये। ठीक है, मगध पाटलिपुत्र राजगृह में पहली हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी। मगध का कोई कंसेप्ट नहीं है। वैशाली के अंदर आपके पास हुई थी सेकंड। ठीक है, सेकंड में राजा थे आपके कालशोक, पहले में थे अजातशत्रु, तीसरे में थे अशोक, और चौथे में कौन थे? आपके कनिष्क। ठीक है, काउंसिल्स याद रखिए, क्लास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जिसकी सबसे पहले स्थापना की थी वो क्या था? आत्मीय सभा। 1814 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। 1828 में ब्रह्मो सभा बनी पहले, फिर ब्रह्मो समाज बना। ये आपको याद रखना, पहले ब्रह्मो समाज नहीं बना, पहले ब्रह्मो सभा बनी, उससे पहले आत्मीय सभा बनी, फिर ये आपके पास ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, चलिए। तत्वबोधिनी सभा का अगर आपको फाउंडर पूछा जाए तो याद रखिएगा तपेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? ठीक है, इसे 180 डिग्री पे हम लैटिट्यूड पे काउंट करते हैं। 2 लाइन्स हमारी। 0 डिग्री है आपकी GM, जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोल देते हो। ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे आपकी क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये इसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, द 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो आपके पास क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन। ऐसे ही पूछा जाए जो नॉर्थ और साउथ में बांटती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास पेपर में आते हैं, तो प्लीज सिली मिस्टेक्स मत करना। रिसिप्ट्स विच लीड्स टू अ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। वो कहता है अगर किसी केस में आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हो या आपकी लाइबिलिटीज, आपकी देनदारी बढ़ रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। अब देखो, इसका एग्जांपल जनरेट करते हैं कि कैसे आपके एसेट्स डिक्रीज हो सकते हैं या आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती है। अगर सपोज करो आपके भारत सरकार ने बोरोइंग की है, उधार उठाया, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो आपके पास पैसा आ गया काम करने का, लेकिन वो पैसा वापस भी तो करना ना, लाइबिलिटी है। मैंने डैम बनाने के लिए पैसा लिया, तो लाइबिलिटी वापस भी तो करनी पड़ेगी ना, है ना। कई बार हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने इस बार सुना होगा LIC के शेयर बेच लिए, जिंक के शेयर बेच लिए, तो आपने किया क्या? अपने हिस्से में से एक हिस्सा बेच दिया। यानी आपके पहले एसेट अगर 1000 करोड़ के थे, मैंने 200 करोड़ बेच दिए, तो मतलब मेरे 200 करोड़ के एसेट्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो एसेट्स डिक्रीज भी होते हैं, ठीक है, और आपकी लाइबिलिटीज कई बार इस केस में बढ़ जाती है। तो 2 में से एक केस होता है जब आप कैपिटल रिसिप्ट्स का काम करते हो। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का याद रखना, ना लाइबिलिटीज इंक्रीज करते हैं ना आपके एसेट्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल रहते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेटर ऑन अगस्त 8 टू हैव प्लेड 600 T20 मैचेस? कैरॉन पोलार्ड थे, वेस्ट इंडियन प्लेयर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 प्लेयर एवर प्लेड दिस गेम। रिटायर हो गए हैं रिसेंटली, मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले हैं, कैप्टन रहे मुंबई इंडियन के, अभी बैटिंग कोच आए हैं। RBI रिलीज 10th of August डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर डैश डिजिटल लैंडिंग एंटिटीज। ठीक है, ये डिजिटल लैंडिंग एंटिटीज आपकी लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, 12 बैंक्स को इसमें चूज किया गया था। Who was the earliest known Chola king who conquered Sri Lanka and ruled it? Elara 50 years रूल किया है। तामिलियंस का रूल रहा है आपके श्रीलंका के ऊपर, तभी आप आज की डेट में थोड़ा सा वो सिन्हलीज और तामिल्स का जो इशू रहा है, सिविल वॉर जो श्रीलंका का हुआ,
वो इसी का आउटकम था, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, 2000 साल, मतलब अप्रोक्सीमेट 1500-1600 साल बाद ये हुआ है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था, किसने कहा था? वीएस स्मिथ ने, ठीक है, वीएस स्मिथ ने इनका कंपैरिजन किया था और इनको भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। चलिए, इन्हें विक्रमांका भी कहा जाता है और कविराज का टाइटल भी इनको दिया जाता है, ठीक है। वीना के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। कंसिडर द फॉलोइंग, अभी देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इनमें से किसका एरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करूं तो आपको पता होना चाहिए इनमें सबसे बड़ी स्टेट अगर हम बाय मैप भी देखें तो मेघालय है, ठीक है। 3 एंड में होना चाहिए था, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो रहे थे? एलिमिनेट हो रहे थे, है ना। 2 और 4 का फसला था मिजोरम और मणिपुर का। थोड़ा सा अगर आपको पता हो, हमें चलो पता है, थोड़ा सा आप मैप को ध्यान रखिए, ठीक है। पहले नंबर पे आपका आएगा त्रिपुरा, सबसे छोटा है, फिर मिजोरम है, मणिपुर उससे थोड़ा सा बड़ा है, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? मेघालय। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो क्लास, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आंसर ठीक होने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कचई लेमन, ये आपके पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, कौन सी स्टेट का है? ये मणिपुर का है, ठीक है। इस साल जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आए हैं क्लास, उसको प्लीज एक पेज पे लिख लीजिए, और सिंपल क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। Which of the following was made a union territory by the 14th constitutional amendment? It was पुडुचेरी, ठीक है, जिसको 14th amendment के थ्रू आपके पास क्या बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। Which part and the article deals with the amendment of the constitution? अब मैच करना पड़ेगा आपको, तो अभी पता लग जाता है। तो 20 पार्ट है, आर्टिकल 368 है। 3 तरीके की मेजोरिटी बताता है ये, सिंपल मेजोरिटी यानी 50% वोट, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 वोट, स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है कि 50% स्टेट्स को भारत में उस बिल को पास करना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी से यस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने, 249, 312, आर्टिकल 61 जो स्पेशल मेजोरिटी के केसेस को डिफाइन करता है, ठीक है। द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? स्टैटिक क्वेश्चन है क्लास, 2008 में। अब ऐसे क्वेश्चन या तो आते हैं या नहीं आते, तो छोड़ दिया करो अगर नहीं पता होता है, ठीक है, नेगेटिव करवा लेते हो तुक्के मार के। बाय विच ईयर द गवर्नमेंट वांटेड टू स्पेंड 3 ईयर ऑफ जीडीपी ऑन द हेल्थ? तो ये 2022 में था। या आफ्टर कोविड ही हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंप्रूव हुआ, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई है, ठीक है। चलिए, थैंक्स, दिस ऑल वी हैव। यू कैन जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन अपने नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानम आपके लिए हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कैसे यहाँ पे सॉल्व इसको करते हैं। चलिए क्लास, तो सबसे पहले ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी? ऑप्टिकल का मतलब क्या है? जैसे सीडी डीवीडी हो गया, तो ऑप्टिकल में आपके पास जैसे सीडी डीवीडी आ गया, तो यहाँ पे बात करें तो साफ तौर पे आपको पता चल रहा है सीडी रोम इज एन, जो एग्जांपल है वो कौन सा है? ऑप्टिकल मेमोरी का। तो सबसे पहले आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बन जाएगा। होपफुली बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द यूजर व्यू ऑफ द कंप्यूटर वेरीज बाय द इंटरफेस बीइंग यूज्ड। अ कंप्यूटर आल्सो नीड टू रिसोर्सेज एलोकेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म द फंक्शन? मतलब बोला कि सारी चीजों की सही तरीके से एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। इसका मीनिंग ये जो निकला है, बोला है कि पूरे सिस्टम की एग्जीक्यूशन करवाने के लिए किस चीज को आपको जो है यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी, मदरबोर्ड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही सारा का सारा काम यहाँ पे सही करवाया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? है डी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। जो फाइल्स होती हैं एक तरीके की, जो सेम फाइल होती हैं, जो एक ही तरीके का डेटा रखती हैं, तो उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या रिकॉर्ड। तो फाइल की कॉम्बिनेशन से फाइनली क्या बनते हैं आपके पास? डेटाबेस यहाँ पे बनते हैं। फाइल की कलेक्शन को क्या बोला जाता है? डेटाबेस। होपफुली आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला है, इफ यू वांट टू लोगो टू अपीयर on every slide in the presentation, you should include it on the
मतलब आपके पास एक मास्टर स्लाइड पे आप लगा देंगे और पूरी स्लाइड में आपके पास वो लोगो जो है अपीयर हो जाए, तो वो कैसे होगा? स्लाइड टेम्पलेट से, स्लाइड मास्टर से, स्लाइड डॉक्यूमेंट से या स्लाइड फाइल से। तो वो किससे होगा? स्लाइड मास्टर से आपके पास यहाँ पे होता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर होगी, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट है टू क्विक प्रिंट अ फाइल प्रेस। तो अगर कोई भी प्रिंट निकालना है तो आपको ये तो मालूम होगा कि जब भी हमें प्रिंट निकालना है तो Ctrl+P दबा के आप लोग क्विक प्रिंट जो है यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपके पास क्या है? द इम्पैक्ट प्रिंटर आर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या ऑल ऑफ दिस? अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? ये ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। प्रिंटर जो है दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, पर ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं इम्पैक्ट के गिवन है। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ पेज एट अ टाइम प्रिंटर? मतलब कि कौन से को हम उसकी स्पीड को जो मेजर करते हैं वो करते हैं टाइम प्रिंटर के हिसाब से। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल या फिर नन ऑफ दिस? अगर मैं बात करता हूं तो लाइन प्रिंटर के हिसाब, टाइम प्रिंटर के हिसाब से जो हम लेते हैं वो लेते हैं लेजर प्रिंटर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम पेज ऑफ वेबसाइट। जब भी कोई भी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट के नाम से उसे जाना जाता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिटेनिंग द वर्ड। इनमें से आपके पास ये वर्ड की बात है, वर्ड में कौन सा काम नहीं होता है? एमएस वर्ड यहाँ पे इसको रेफर किया गया है। डिलीट, एडिट, कॉपी या स्लाइड शो। अगर मैं बात करता हूँ किसी पेज में डिलीट करने का काम होता है, एडिट करने का काम ये भी का आप लोग करते हैं, और कॉपी करने का बिल्कुल कॉपी और पेस्ट भी होता है। बट आपके पास स्लाइड शो जो है वो तो किस में होता है? वो होता है प्रेजेंटेशन में, मतलब पावर पॉइंट में होता है। तो ये आंसर बन जाएगा, यही पूछा था, नॉट प्रिटेनिंग। नॉट जो टर्म है प्रिटेनिंग नहीं होती है, वही आपको बताना है। सो आंसर इज आपके पास डी ऑप्शन। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन द सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? तो आपके पास सबसे अच्छा व्यू कौन सा माना जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड व्यू या फिर आउटलाइन व्यू? तो याद रखेंगे जब जो सबसे अच्छा व्यू होता है वो होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये याद रखना है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इतना ही आज के सेशन में आपके लिए था। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका फिर से एक बार ज्ञानम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो उस मॉक टेस्ट में जो रीजनिंग का पार्ट है उसे मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच लेटर वर्ड सीरीज फॉलोइंग द गिवन रूल। मतलब कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है उसकी बात करी गई है। अब ये रूल क्या है देख लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज गोज इंक्रीज सक्सेसिवली बाई 1। मतलब ऐसा कौन सा आपके पास यहाँ पे वैल्यू है जिसमें एक लेटर जो है बीच में इंक्रीज होता जा रहा है सक्सेसिवली? मतलब एक से जैसे अगर आपके पास यहाँ पे चल रहा है तो उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ए, और ए के बाद है ई। तो अगर ए के पोजीशन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ए का पोजीशन वैल्यू होता है 1 और ई का पोजीशन वैल्यू होता है 5। तो यहाँ पे तो पहले ही 4 का डिफरेंस आ गया, तो सक्सेसिवली तो यहाँ पे बात बनेगी ही नहीं। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डी और आई, तो डी एंड आई, तो इसमें भी अगर बात करते हैं इसकी पोजीशन वैल्यू है 4 और इसकी पोजीशन वैल्यू है 9, 5 का डिफरेंस है, ये भी नहीं बनेगा। देन आगे अगर मैं देखता हूँ ई और एच, तो ई और एच 5 और 8 इसमें भी नहीं बनेगा। आखिरी नंबर है आपके पास एफ और एच। एफ क्या है आपके पास 6 है, एच क्या है आपके पास 8 है। तो यहाँ पे 7वां नंबर मतलब जी आपके पास मिसिंग है। उसके बाद आगे है आपके पास के। अगर के की बात करूं तो के होता है 11। तो यहाँ पे 9 और 10, तो हाँ ये बात तो मतलब बन गई सक्सेसिव, आपके पास मिलना स्टार्ट हो गया। 7 है, फिर 8 है, फिर 9, 10 छोड़ के 11 है। अब 12, 13 और 14 नहीं होगा, तो आपके पास देख लो है भी नहीं। सच में 15 है आपके पास,
तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सीरीज को चलाया गया है। तो जबकि हमने पहले ही देख लिया था कि 3 ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। हमने एक बार कंफर्म जरूर करना है, कंफर्म करने के बाद डायरेक्ट आप लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। तो होपफुली बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग पैटर्न जो है आपके पास ये है। आपके पास पहला है E F G H I J K। अब इसका कोड आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, V U T S R Q P। अब यहाँ पे अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा तो सिमिलर आप लोग यहाँ पे सोर का कोड निकाल सकते हैं। तो ई का पोजीशन वैल्यू होता है 5 और आगे है 22। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लेटर का अपोजिट जब सम जो बन रहा है 27, आगे है 11, यहाँ पे है 16, इसका फिर से बन गया 27। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे क्या आ गया 27। तो मैंने पूरा चेक नहीं किया, मैंने बस आइडिया सा ले लिया कि यहाँ पे सभी में 27 बन रहा है। तो या फिर अपोजिट वर्ड भी आप बोल सकते हैं, अपोजिट अल्फाबेट एक दूसरे के आ रहा है तभी भी सही है। तो सिमिलर सोर के अपोजिट आपको निकालना है, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं SOUR। अब S का वैल्यू होता है 19, 19 के अपोजिट क्या आता है 8, मतलब H। तो ये देखो सारे ऑप्शन यहाँ से अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्ट बी ऑप्शन। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं निकालना होता है, हमें ऑलवेज कटिंग करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को काटा कैसा जाए। अब देखो 19 है ना, 19 के अपोजिट 8, 27 बनेगा, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने पहले ही काट लिया कि 8 आएगा, बाकी में किसी में है नहीं, बी ऑप्शन में है, बात खत्म, आंसर आ गया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास सीरीज का। यहाँ पे क्या लिखा है, रॉन्ग सीरीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सीरीज में क्या है, 3 आपके पास 5 10 12 24 26 52 आपके पास 54 एंड 109 एंड 110, ये सीरीज आपके पास है। तो अगर 3 से 5 की बात करूं तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। देन आगे बात करी जाए मल्टीप्लाई 2 हुआ है। देन आगे फिर से क्या हुआ है, +2 हुआ है। देन आगे बात करूं मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 2 हुआ है। देन आगे +2 हुआ है। देन आगे फिर से मल्टीप्लाई 2 हुआ है। देन आगे अगर मैं बात करता हूं +2 हुआ है, देन यहाँ पे 108 आना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई 2 करके, तो यही रॉन्ग नंबर सीरीज है। निकालना क्या था, रॉन्ग सीरीज निकालना था। ठीक है, रॉन्ग सीरीज निकालना था, तो 109 जो है आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक था वो ये था, +2 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2, ये लॉजिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो यहाँ पे 108 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, जो कि 109 लिखा है, तो ये क्या है, गलत। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर, सेंटर नंबर क्या आएगा। तो 1 2 3 4, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 का क्यूब किया गया है, +2 का क्यूब किया गया है, +3 का क्यूब किया गया है, +4 का क्यूब किया गया है। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, आगे 27 आ जाएगा और आगे 64 आ जाएगा। सभी का सम करेंगे तो वो कितना बनेगा, आपके पास 100 बन जाएगा। सभी का सम करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, आपके पास 100 बन जाएगा। तो आंसर इज क्या बन जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन। होपफुली ये भी बात अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ई जे आई के इज रिलेटेड टू, देखिए ई जी आई के इज रिलेटेड टू डब्ल्यू यू एस क्यू। 5 और यहाँ पे 23, 7 और 21, 9 18 11 और 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो सभी का सम अपोजिट जो है वो 28 के बराबर बन रहा है। लेटर्स का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर बन रहा है, 28 के बराबर यहाँ पे बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, तब 28 बनेगा। 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो 28 यहाँ पे बना। अब सिमिलरली किसका निकालना था, DFH J। तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे है 10। तो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें आंसर अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो हम सीधे ही यही सोचेंगे कि मैं 10 में कितने ऐड करूं कि मेरे पास 18 बन जाए। 10 में अगर 28 मेरे को बनाने हैं तो 18 ऐड करना पड़ेगा। तो 18 का नंबर जो होता है वो R। तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसल कैंसल कैंसल, आंसर डी ऑप्शन।
सीधा ही आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो कि डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि मैंने आंसर अप्रोच से निकाला कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 28 इसी नंबर से बनेगा, आखिर में आर यहाँ पे यही लिखा था, बात खत्म। स्टार्टिंग में से भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 of the following 4 are alike in a certain way and so from a group, which of the following one that does not belong into the group, इनमें से कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो नेफ्रोलॉजी, एनाटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड माइकोलॉजी। अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है आपके पास बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो बायोलॉजी से रिलेट नहीं करता है। ये तो आपके पास सितारों का ज्ञान होता है, तो ये आपके पास आंसर बनेगा सी ऑप्शन, जो कि ये रिलेट नहीं करता है, ये इन सभी से क्या है, अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है डायरेक्शन से है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दो तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, एक लॉन्ग कट होता है, एक शॉर्ट कट होता है, दोनों ही आप लोग सीख लो। देखो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आपके पास यहाँ पे है। अगर मैं बात करता हूँ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से है 45 डिग्री यहाँ तक जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है जी। देन आगे है एंड अगेन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर 180 जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेंगे बेटा आप लोग। देन आगे है 270 एंटी क्लॉकवाइज, अगर 270 आप लोग जाएंगे तो 180 तो यहाँ तक ही हो गया, 180 से 90 और आगे जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पहुंच गए। तो आपसे पूछा गया है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो आएगा साउथ वेस्ट आपके पास आंसर। पर इसको करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं। एक शॉर्टकट होता है, एक तरफ लिखे क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना था 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज था आपके पास यहाँ पहले क्लॉकवाइज 45 था, फिर प्लस ऑफ 180 था, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज था 270। एंटी क्लॉकवाइज था आपके पास यहाँ पे 270। तो अब आपको मालूम है कि आपके पास बड़ी वैल्यू जो है ये तो आपके पास कितनी है, इससे कम बनेगा 8 4 12 2 और यहाँ पे 225। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसे 270 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 45 डिग्री। और विच डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, नाउ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर आ जाते तभी भी साउथ वेस्ट ही आप लोग पहुंचे। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस जो होता है हमने वही डिस्टेंस तय किया है। तो 270 जो था वो ज्यादा था और 225 जो था वो था कम था, तो वैसे ज्यादा ही गया था किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे ब्लड रिलेशन से लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो क्या है कि वैल्यू के जो सिंबल है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। तो P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर। P देखो सारा P सबसे पहले लिखा तो मेरे को ये समझ में आ गया कि सारे के सारे रिलेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से लिए हैं। अब इक्वेशन है आपके पास A प्लस बी, इक्वेशन यहां से ले लेते हैं A प्लस बी। अब प्लस का मीनिंग यहां से ले लो, प्लस का मीनिंग है फादर, मतलब A इज द फादर ऑफ बी, A इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। आगे है मल्टीप्लाई, B मल्टीप्लाई C, मल्टीप्लाई का मीनिंग है ब्रदर, B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C, आपने यहाँ पे बना लिया। आगे है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है सिस्टर, C इज द सिस्टर ऑफ D, C इज द सिस्टर ऑफ D। देन आगे आपके पास है एस्ट्रीक, एस्ट्रीक का मीनिंग है सन, कि D इज द सन ऑफ E। अगर D जो है बेटा सन है किसका, E का, तो ये ऑब्वियस आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो तभी इसका सन लगेगा। अगर यहाँ पापा है तो यहाँ मम्मी आ जाएगा। और आपके पास है E हैश F, F का मीनिंग, हैश का मीनिंग है आपके पास डॉटर, E इज द डॉटर ऑफ F, तो ये भी बन गया कि E इज द डॉटर ऑफ F। हाँ जी, डायग्राम तो आपने यहाँ पे बना लिया। अब पूछा क्या गया था, हाउ A इज रिलेटेड टू F, कि A जो है वो F का क्या लगता है, तो A जो है वो F का क्या लगता है, दामाद लगता है। दामाद को क्या बोला जाता है, सन इन लॉ। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, इन अ रो ऑफ गर्ल देयर आर 16 गर्ल बिटवीन द प्रिया एंड नताशा। प्रिया इज
32nd from the left end of the row. If Priya is nearer to Natasha from the right end of the row, then how far away is Natasha from the left end of the row? अब आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन है कि दो लड़कियां हैं प्रिया और नताशा। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि दो लड़कियां हैं आपके पास प्रिया एंड नताशा। तो आपके पास क्या है कि प्रिया जो है वो राइट एंड से ज्यादा नजदीक है किससे? नताशा से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में टोटल कितनी लड़कियां बैठी हैं? 16 लड़कियां बैठी हैं और इसकी पोजीशन जो है 32 है। अब आपको ये बताना है कि नताशा की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितनी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बच्चों बहुत आसान है, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो प्रिया जो है राइट हैंड से ज्यादा नजदीक है, प्रिया जो है राइट हैंड से ज्यादा नजदीक है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन हमें मालूम है वो कितनी है? 32। अगर वो 32 है तो उससे पीछे की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो प्रिया और नताशा के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं? 16। तो 16 तो पहले सीधे सीधे ये माइनस हो जाएंगे और एक पोजीशन और भी माइनस होगी क्योंकि यहां से पूछा ये है कि नताशा की लेफ्ट हैंड से कितनी है। तो टोटल आप लोग यहाँ पे ये काम करिए, 32 माइनस ऑफ 17 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास सी ऑप्शन, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 999th डे फ्रॉम द टुडे। टुडे से पूछा है आप लोगों से, आज से। तो 999 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए आपके पास यहाँ पे सीधा डिवाइड करना है किससे? 7 से। नंबर ऑफ वीक आ जाएंगे तो 1 से गया, 7 पे कितने बचे? 2, 29, 4 पे गया 28, बचा कितना आपके पास? 1, 19, तो 2 पे गया तो आपके पास कितना बचा? 14, बचे कितने? 5। अगर मैं बात करता हूं तो 5 क्या है? ओड डे है आपके पास, ठीक है। ये क्या है? 5 ओड डेज। और ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ वीक। ये क्या है? नंबर ऑफ वीक। सो 142 हफ्ते हैं और 5 और डे है। और जो आपके पास पहला दिन स्टार्ट हुआ था वो क्या था? सैटरडे। तो सैटरडे से आगे आपको चलना है कितने? 5 दिन। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे इससे चल के 1, 2, 3, 4 और 5। सो आंसर इज योर थर्सडे। आंसर इज थर्सडे। होपफुली बात आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने आप में क्या है, एक वेन डायग्राम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल। अगर मैं बात करता हूं ऑटोमोबाइल की ही इंडस्ट्री से है तो ऑटोमोबाइल आपके पास। अगर मैं बात करता हूं क्या है, कार अलग होती है और मोटरसाइकिल अलग होते हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा कि एक ही इंडस्ट्री के दो अलग अलग पार्ट है। एक ही इंडस्ट्री के दो क्या है? अलग अलग पार्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्या है आपके पास? मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्वेश्चन जो है लिया गया है और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटर आप लोग भरेंगे जिससे कि आंसर क्वेश्चन का बन जाए। तो पहला है आपके पास यहाँ पे 12-4-2-1 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले भरता हूं। पहले क्या है? डिवाइड, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे होता है बोर्ड मास, यहाँ पे क्या है? बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ दोनों ही नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आएगा आपके पास? 2। 12 माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। ये कभी नहीं बनेगा, आंसर गलत। ए ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन उठाते हैं, 12, 4, 2, 1 इज इक्वल टू 24। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बेटा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 24। तो ये सारा का सारा अगर करेंगे तो 24 ही आएगा, इज इक्वल टू 24। सो आंसर इज बी ऑप्शन। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। तो देखिए कुछ प्रोफेसर क्या होते हैं? रिसर्चर। और क्या होते हैं? साइंटिस्ट। तो इसका आंसर साफ तौर पर पता चल गया। कुछ प्रोफेसर रिसर्चर भी होते हैं, साइंटिस्ट भी। कुछ रिसर्चर प्रोफेसर साइंटिस्ट दोनों होते हैं, कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर रिसर्चर दोनों होते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन। डायरेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन फिर से रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पॉइंटिंग टू रविंदर, रीना सेज। स्पीकर कौन है? रीना। रीना क्या बोलती है ये देखते हैं। रीना सेज ही इज द सन
ऑफ माई मदर्स ब्रदर वाइफ, मतलब रीना की मदर के ब्रदर की वाइफ का बेटा कौन है? रविंदर। ठीक है, तो बेटा है तो पॉजिटिव साइन। अब पूछा था हाउ इज रीना रिलेटेड टू रविंदर, रीना जो है वो रविंदर की क्या लगती है? तो ये इसकी क्या लगती है? कजन सिस्टर लगती है। सो आंसर इज आपके पास सी ऑप्शन, कजन सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला आखिरी क्वेश्चन है, एट बट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर आना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 60/11 और इनटू में फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं ये बात करता हूँ 60/11 इंटू में फर्स्ट टाइम, आपके पास क्या था यहाँ पे 3, तो आपके पास सोल्व करेंगे 180/11। तो जब इसे पूरा सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट में? आपके पास 16 आपके पास 16 यहाँ पे आएगा 16 यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास 16 3/11। आपके पास यहाँ पे आंसर अगर काट के देखते हैं तो इससे कितने पे गया? 3:16। अच्छा, काट के देख लो इसे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 11 से काटा, 11 पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? देखिए 180 180 रिमाइंडर पे कितना है आपके पास? 11। तो 11 से काटा तो सबसे पहले 1 पे गया, कितना आ गया आपके पास? 11। यहाँ पे कितना आ गया? 70। फिर कितना गया? 6 पे, तो यहाँ पे आ गया 66, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो आगे फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 16 यहाँ पे आएगा 3:16 4/11। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा 16/4/11। 16/4/11 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 16/4/11। तो ये 16/4/11 यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो मतलब ये होगा 3:16 4/11 पे आपके पास नीडल क्या कर देंगी? कोइंसाइड बन जाएगी। अपॉन में 11 आएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा 16/4/11। तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट के क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं? देखिए, इन ए बॉक्स देयर वर a dozen of cakes of soap in each horizontal and vertical row. If there were 12 such layers in the box, find the total number of soap. देखो, horizontal भी हैं, vertical भी हैं, और टोटल कितनी लेयर्स हैं? 12 लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका बनता है 12 का क्यूब। और यहां से देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 का क्यूब सबको याद होगा 1728 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है? नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमला गोट मैरिड 6 years ago, कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। टुडे हर एज इज 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 5/4 टाइम्स 5/4 टाइम्स हर इज एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि अगर मैरिज के टाइम उसकी एज 4 थी तो आज कितनी है? 5। देखो यहां से डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है, और ये कितने के इक्वल होगा? 6 year के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू क्या होगी? 24, और 5 की वैल्यू क्या होगी? 30। कि अगर उसकी शादी जब हुई थी वो 24 साल की थी, तो 6 साल के बाद मतलब आज के दिन वो कितनी है? 30 साल की है। हर सन इज 1/10 टाइम्स हर एज, और उसका जो बेटा है वो आज के अकॉर्डिंग कितना है? उसका 1/10। तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3 year। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी इन्वेस्ट 2, 3 and 4,000 in a business. After 1 year, A removed his money, but B and C continue for 1 more years. If the net profit after 2 years be 3,200, then A's share in the profit. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? देखो, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ए, बी और सी ने, ए, बी और सी। ए ने कितना पैसा लगाया? 2,000। बी ने लगाया 3,000, और सी ने कितना लगाया? 4,000। ठीक है,
आफ्टर 1 ईयर ए रिमूव हिज मनी, बी एंड सी कंटिन्यूड फॉर 1 मोर ईयर। कि ए का जो पैसा था वो 1 साल के लिए लगा, बी का पैसा 2 साल के लिए, और सी का भी पैसा कितने साल के लिए लगा, 2 साल के लिए लगा। देखो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया 1:3:4, मतलब टोटल कितना प्रॉफिट 8, और 8 यूनिट की वैल्यू क्या है 3200। अगर 8 की कीमत 3200 है तो 1 की कीमत कितनी होगी आपकी 3200 बटा 8, इसको 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है 400 आती है। तो उसने पूछा ए का प्रॉफिट, और ए का प्रॉफिट क्या था 1 यूनिट ही था, मतलब 400 रुपए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 11, 23, 17 is 15 and the average of AB 12 is AB is 12, 15 and 16. Then find the value of A and B. देखो यहां क्या कह रहा है, A 11, 23 और 17 चार नंबर है आपके पास, और चार नंबर का एवरेज कितना है 15 है। तो इन चार नंबर का एवरेज 15 है, तो इन चार नंबर का सम कितना होगा 60 होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि A प्लस 11 प्लस 23 प्लस 17 ये किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस, देखो ये कितना मिलेगा 23 प्लस 17 40, 40 प्लस 11 51। तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि A, B 12 और 25 इज 16, मतलब अब जो नेक्स्ट 4 नंबर हैं उनका एवरेज 16 है, तो उनका टोटल सम क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। A की वैल्यू 9 है, प्लस B प्लस 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 64। तो देखो यहां से अगर मैं B की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये 64 माइनस 12 प्लस 9, अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो 21, 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपके पास 46 हो जाएगा। तो यहां से मैं अगर B की वैल्यू कैलकुलेट करूं, देखो 14 प्लस 4 18, B की वैल्यू क्या आती है आपकी 18 आती है। तो उसने पूछा था A बाई B मतलब 9/18, तो 1/2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए आई होप क्लियर होगा सबको ये। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 टीवी सेट एंड ए रेडियो इज 7000। 2 टीवी सेट एंड 1 रेडियो, इसकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी बताई गई है 7000 बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाइल द 2 रेडियो एंड 1 टीवी, अगर 1 टीवी और 2 रेडियो की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट कितनी बनती है आपकी 4250 बनती है। तो कितनी बनती है 4250 बनती है द कॉस्ट ऑफ ए टीवी सेट। तो एक टीवी सेट की कॉस्ट क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को इक्वल बना लीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी, या तो आप टीवी सेट को इक्वल कर लो या आप रेडियो वालों को इक्वल कर लो, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि चलो मैं रेडियो वालों को इक्वल कर लेता हूं, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो 2 रेडियो से 2 रेडियो कैंसिल, तो 4 में से 1 गया, तो ये 3 टीवी सेट की कॉस्ट क्या आ जाएगी, देखो ये 14,000 में से अगर आप 4250 माइनस करोगे तो ये आपका 9750 आता है। कितना आता है 9750। मैंने रेडियो को इक्वल क्यों किया, क्योंकि मुझे टीवी सेट की ही कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। अब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, पहले 3 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे, फिर 5 पे, फिर 0 पे, मतलब 3250। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अलोक परचेज 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर kg, कि उसने 25 किलो खरीदे 6 रुपए के हिसाब से, तो 25 गुना 6, तो मतलब उसने ये टोटल 150 के खरीदे थे, एंड 35 फॉर 7 रुपीज पर kg, ठीक है।
अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पहले देखो 7 इंटू 5 35 कैरी 3 21 प्लस 4 245। ठीक है, तो उसने टोटल कितने के खरीदे हैं 150 और 245। तो 5 5 और 4 9 और 3, मतलब हम कह सकते हैं कि उसने 60 केजी 395 रुपए के खरीदे और उसने यही 60 केजी आपका 6 रुपए 75 पैसे डिवाइड बाय 100 कर देते हैं इसको। 25 से डिवाइड करेंगे 4, 25 से डिवाइड किया सबसे पहले तो 2 पे डिवाइड करेगा, फिर कितना बचेगा 17 175 और फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे, ये इसको 15 पे डिवाइड करेगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं 10 से करता हूं 270 और 135 5, तो 405 रुपए। देखो 395 में खरीदे थे, 405 में बेच रहा है, तो 10 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, दे वर्क फॉर 20 डेज। अगर ए प्लस बी आपका किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 डेज में पूरा करते हैं, तो 1 डे वर्क क्या होता है इनका 1/30। और इन्होंने कितने दिन के लिए काम किया 20 दिन के लिए, इंटू 20 करो, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 2/3 काम इन्होंने कर दिया। अगर 2/3 काम कर दिया तो बचा कितना आपका, 3 में से 2 काम कर दिए तो बचे कितने 1। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, द रिमेनिंग वर्क डन बाय ए इन 20 मोर डेज, कि जो 1/3 वर्क है वो ए 20 डेज में करता है, मतलब 3 में से 1 काम ए करता है 20 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, टाइम भी 3 गुना ले लेगा 60 दिन में। तो ए अकेला करता है 60 दिन में। तो उसने ये पूछा था अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा 60 दिन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग running at 36 km per hour take 25 seconds to pass a bridge, the length of the bridge। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 36 की स्पीड से क्रॉस करती है, इसमें ब्रिज की लेंथ भी ऐड हो जाएगी x प्लस 100, 36 इंटू 5/18 इंटू 25, डिवाइड करेंगे 2 पे, 10 250, तो 150 आंसर आ जाएगा। तो 250 में से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकेंड, अगर द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द ब्रेथ ऑफ द टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 3/5, कि लेंथ अगर पहले 5 थी तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 8। तो जो विड्थ है ना आपकी वो 8 से 5 होगी, क्योंकि देखो एरिया कैलकुलेट करो 40 और यहां से भी कैलकुलेट करो 40, तो 8 से 5 तो कितना कम हुआ 3, कितने के ऊपर 8 के ऊपर 3/8, और 3/8 की वैल्यू क्या होती है आपकी 37 1/2%। कितनी होती है 37 1/2%। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिट इन ए क्यूबिकल, देखो क्यूब, और क्यूब का अगर हम डायगोनल करें तो क्या होता है √3 इंटू साइड, तो 10√3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था ये, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर बिटवीन द 2 स्टेशन इज 4:1, कि फेयर का जो प्राइस जो रेशियो है वो कितना है 4:1 है, एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज 1 to 40, 1 to 40। तो यहां से ये 4 और यहां से 40, तो टोटल कितना रुपया आया 4400 यूनिट, जो किसके इक्वल है 1100 के इक्वल है। देखो तो यहां से अगर हम बात करें कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको डिवाइड करो 44 से, इसको अगर मैं 22 से डिवाइड करूं 2 और 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है आपकी 25 आती है। तो उसने पूछा क्या था हमसे, फर्स्ट क्लास का पूछा था, तो 4 इंटू 25, तो मतलब 100 रुपीज आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल। देखो सबसे पहले तो इंटरनेशनल वर्ड में काउंट करो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चलो जी, सब में 13 है। उसके बाद रिपीट क्या क्या हो रहा है, देखो आई रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं, आई रिपीट हो रहा है मेरा, आई कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 एंड 2, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। अब ठीक है, डिवाइड में एक 2 फैक्टोरियल तो आएगा। उसके बाद एंड रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो डिवाइड में एक 3 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। उसके बाद टी भी रिपीट हो रहा है 1 एंड 2, तो डिवाइड में एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। उसके बाद आपका ए भी रिपीट हो रहा है, मतलब डिवाइड में एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। उसके बाद तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए जी, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 30% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। देखो 30% 4 साल के लिए, अगर मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई भी करूं ना, तो भी मेरा 120% बनता है। तो भी मेरा कितना बनता है, 120% बनता है, ठीक है। तो 120% बनता है, तो मतलब 5000 से तो ज्यादा ही होगा। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए मेरे, ठीक है। अगर मैं उसके बाद भी देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितना बनता है मेरा, 30%, इसका 30% कितना होगा, 1500 रुपए। पहले साल में 1500, दूसरे साल में 1500, तीसरे साल में 1500 और फिर चौथे साल में 1500, 6000 तो यही हो गया, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब इसका सबसे पहले 30%, ठीक है। इसका 30% कितना होगा, 450 रुपए होगा, फिर ये 900 रुपए होगा, ठीक है, और फिर 1350। तो 1350 और 1350 2300, तो बहुत बड़ा नंबर बनने वाला था, तो मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में ना, सिर्फ आप ऑप्शन की हेल्प लेके, और आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता था ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 42% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 52 फेल्ड इन इंग्लिश। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन नजर आ रहा है ये तो, ठीक है। ये आपका हिंदी, ये आपका इंग्लिश, और 17% तो उसने दोनों में बता दिए हैं। 42 में से 17 माइनस करेंगे तो 25%, और 52 माइनस करोगे तो 35। 52 प्लस 25 मतलब 77% तो क्या है, आपके फेल है। अगर 77% आपके फेल हैं, तो ये बताइए पास कितने होंगे, तो 23%, मतलब ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 वेसल्स A and B, milk and water, in the ratio 3:1 and 5:3. Find the ratio in which these 2B are mixed to get a new mixture 2:1. या तो आप मिल्क को ले लो या वाटर को। अगर मैं मिल्क को लेता हूं तो सबसे पहले कितना है, 4/3, फिर कितना है 5/8, और फिर कितना होगा 2/3। 3, 8 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि मेरा जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए। 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8, तो ये 16 बन गया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 3/4। ये उल्टा लिख दिया हमने, फर्स्ट में 3/4 बनेगा, फर्स्ट में 3/4 बनेगा आपका। इसमें हमने ये बनेगा आपका 3/4 इंटू 24 हो जाएगा, तो ये 18 बनेगा। 18 में से 16 गया 2, और 16 में से 15 गया 1, तो 1:2। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे सब बच्चों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, I am Piyush Sardana, your English language teacher. Let us see what we have in store for us in this mock. आपको मीनिंग बताना है, टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ। टेम्परेंस का मीनिंग बताना है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इन मॉडरेशन, जो पूरे थोड़ा मॉडरेशन में चल रहा हो आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, ही वॉज एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेटेड इज द वर्ड इन बोल्ड। एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फॉर हिज एक्शंस। इट इज एक्सकल्पेटेड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल लेडीज हैट्स, इसको बोला जाता है मिलनर। वो जो लेडीज हैट्स में डील करता है
और बनाता है उसको बोला था मिनरल। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म। अब आपको एरर निकालना है। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड इज पास्ट। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं, वॉज सो सेल्फिश दैट। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉ। ऑफ लग गया तो पोस्ट्रोफे का कोई काम नहीं। वी हैड स्वैम नहीं, स्वम। अगला क्या है? करेक्ट ऑल्टरनेटिव अ थिंग ऑफ पास्ट। अब यहां पे आपको गिवन है ये अंडरलाइन। बॉन्डेड लेबर इज नाउ ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ पास्ट। इट इज sheer foolishness to think that the education system can be improved by doing away examination. Doing away examination नहीं, अब देखो by doing away नहीं, by doing away with examination के साथ, तो with साथ में चाहिए अपने को। You would have heard about it by now. Yes, Pluto is no longer considered a planet. Pluto को planet consider नहीं करते हैं। अब देखेंगे पहले क्या आएगा। For instance नहीं, it is to be called, हाँ ये सही है। Dwarf planet कहे तो ठीक है। तो स्टार्ट ये Q से हुआ तो A और C का आंसर बनता है। Q के बाद P। For instance Pluto is the only novi, नहीं, यहां dwarf के साथ लिंक नहीं बन रहा है। S लगाएं। Even in the past Pluto status had remained shaky and was always considered a peculiar planet. ठीक है, तो बिल्कुल सही। Q के बाद S, आंसर मेक्स इट C. Those who are mentally not different. अब देखो, those who are in favor of co-education say that boys and girls are mentally not different and emotional and physical difference are no longer barred. तो क्या हो जाएगा? Those who are, अब देखिए जरा, in favor of co-education, ठीक है। अब देखो, say that boys and girls are mentally, ऐसा हो जाएगा SQPR, आंसर B, boy. इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन हॉकी सीरीज। अब मीनिंग ऑफ इडियम देना है और ये ऑप्शंस आपको कुछ दे रखे हैं। इट शुड बी, मैं वो बता देता हूं ऑप्शन आपको। लूज, लूज, दो ऑप्शन तो ये हो गए। तीसरा है विन और चौथा है डिसाइसिव विक्ट्री। डिसाइसिव विक्ट्री। अब इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी सीरीज, तो इट शुड बी व्हाट? विन। सी ऑप्शन, विन आंसर होगा। यहां ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। द मैनेजमेंट डिसमिस्ड हिम एंड मेड नो बोन्स अबाउट इट। यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपके पास, इट इज नो बोन्स अबाउट इट। अब यहां पे इसका मतलब बताना है। मेड नो सीक्रेट, डिड नॉट कंसल्ट एनीवन, डिड नॉट डिफेंड द एक्ट, हैड नो स्क्रपल अबाउट इट। इट इज हैड नो स्क्रपल अबाउट इट। क्या बताना है इसका? एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। द वर्ड इज डॉलरस। डॉलरस का मतलब होता है somebody who is very sad, बड़ा पड़ा है, साइड पे पड़ा है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा bemused is confused, morose is sad, assured, cheerful is the answer. नेक्स्ट है, कहता आपको वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। द वर्ड इज क्विंटेसेंस। अभी क्विंटेसेंस में QUINT तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ई आ जाएगा। ई आते ही आपको पता लग गया कि ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, तो ये बन गया आपके पास क्विंटेसेंस। अभी क्विंटेसेंस में ये देखना है आपको SSANCE या SSENCE। इट शुड बी SSENCE। B is the correct answer. I hope you enjoyed this. Thank you.